اس لیے آپ ادب سے بیٹھے ہیں. یہ 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور 11ویں شریف کی محفل سرکار غوث اعظم کے نام کی طرف منسوب ہے. آپ اور ہم شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہم سے پہلے کئی خطبہ کئی نعت خواں پڑھ چکے. میرے بعد بھی انشاءاللہ آپ کو خطاب سننا ہے. سب کا نام آپ جانتے ہیں, سب کی خوبی پہچانتے ہیں, تعارف کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل ادب سے بیٹھے, ہوش میں بیٹھے ہیں. آج میں اپنی تقریر میں خاص باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. پہلی بات تو یہ بتانا چاہوں گا دنیا کیا ہے, دنیا کی حقیقتیں, لذتیں, محبتیں کیا ہیں. دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا اس دنیا میں ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگوں نے زندگی کس طرح گزاری اور ہم مسلمان اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہیں, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. دو باتیں. تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا مومن کس کو کہتے ہیں, مسلمان کس کو کہتے ہیں. چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا آج ہم مسلمان برباد ہو رہے ہیں, ذلیل ہو رہے ہیں, رسوا ہو رہے ہیں. پوری دنیا میں آج مسلمان پر بولو لوگوں کی ترچھی نظر ہے. آخر ہم پر لوگوں کی ترچھی نظر کیوں ہے, ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں, رسوا کیوں ہو رہے ہیں, اس کا کارن کیا ہے اور اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے. یہ بات بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. پانچویں بات یہ بیان کرنا چاہوں گا ولی کس کو کہتے ہیں, ولیوں کا مرتبہ کیا ہے, ولیوں کی پہچان کیا ہے. اور چھٹویں بات یہ بیان کرنا چاہوں گا کیا اللہ کے ولی مزاروں میں زندہ ہوتے ہیں یا عام لوگوں کی طرح مٹی میں مل جاتے ہیں. یہ چھٹویں بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. تقریر کے دوران کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے, بالکل ادب سے بیٹھے, ہوش میں بیٹھے اور جس کو جہاں جگہ مل گئی ہے وہیں بیٹھے. بچہ بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیے, جوان بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیے اور چچا بھی اٹھے تو عزت سے بیٹھائیے. اور ہماری ماں بہن اگر اٹھتی ہیں تو ہماری ماں بہن بھی ان کو عزت سے بیٹھائیے تاکہ جلسہ خراب نہ ہو. میں جب تک خطاب کروں آپ میرے خطاب کو بغور سماعت فرمائے اور یہاں سے کچھ لے کر جائیں. ایسی ایسی حدیث سناؤں گا کہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا, طبیعت مچلے گی اور یہاں سے جائیں گے تو آپ کے سینے میں اللہ تعالیٰ کا خوف رہے گا, نبی کی محبت رہے گی, قبر کی منزل یاد رہے گی. آپ اپنے بچوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے بشرطے کہ اللہ نے اگر آپ کو ہدایت دی ہے تب. اور اگر ہدایت قسمت میں نہیں ہے تو غلام ربانی ایک غلام ربانی نہیں, ہزاروں غلام ربانی کی تقریر بھی ناکافی ہے. تو بالکل آپ ادب سے بیٹھے. آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا کو آقا, مدنی تاجدار, دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار مصطفیٰ جان رحمت, شمع بزم ہدایت, نو شہ بزم جنت, پھول باغ رسالت, عرش کی زیب و زینت, فرش کی طیب و نوزت, جن کی شان انا آتینا کل کو سر, شافع میں شب ساتھی کو سر, حضور تاجدار مدینہ, راحت قلب و سینہ, کائنات کی شان, مومنوں کی جان یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ سب لوگ محبت کے ساتھ پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں. درود شریف پڑھیں, زور سے پڑھیں. اللہم صلی علی. بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سامنے سے آواز آنی چاہیے لیکن یہ لگ رہا ہے کہ پیچھے سے دھکا مار رہا ہے, لیکن اب کچھ نہیں کرو, اب رہنے دو, چپ چاپ سے بیٹھو. اجازت ہے, جلدی بولو اجازت ہے, اجازت ہے, اجازت ہے تو شعر ملاحظہ فرمائیں. شاعر لکھتا ہے, ادھر دیکھیے, شاعر لکھتا ہے بہادر شاہ ظفر کا نام آپ نے سنا ہوگا. بہادر شاہ ظفر یہ ہمارے ملک بھارت کے آخری بادشاہ گزرے ہیں. بہادر شاہ ظفر بڑے شریف, بڑے نیک, بڑے دیندار. ان کی شرافت کی وجہ سے انگریز نے ہمارے بھارت پر قبضہ کر لیا اور ان کو جیل میں ڈالا.
ان کو سزائے موت دی. جب سزائے موت پانے لگے تو سزائے موت پانے سے پہلے بہادر شاہ ظفر نے ایک نصیحت آمیز کلام لکھا جس کا ٹکڑا پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے. بہادر شاہ ظفر نے کہا عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں، دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں. اور کتنا ہے کم نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز بھی مل سکی نہ زمین ہوئے یار میں، 2 گز بھی مل سکی نہ زمین ہوئے یار میں. اور یہ بھی شیخ ملاحظہ فرمائے کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا. آدمی بلبلا ہے پانی کا، اور صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. اور سرکار اعلی حضرت سرکار غوث اعظم کی شان میں لکھتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اور اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے، او سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. میرے دوست، میرے عزیز، میرے بچے، میری پیاری ماں بہن، تقریر کے دوران کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے، بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے، بالکل ادب سے بیٹھے. ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، رب کریم کا ارشاد پاک، ایمان والوں خبردار رہنا، ایمان والوں ہوشیار رہنا، ایمان والوں چوکنا رہنا، کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی محبت تمہیں گمراہ کر دے، بال بچوں کی محبت تمہیں تباہ و برباد کر دے، سونے چاندی پیسوں کی محبت تمہاری عاقبت کو خراب کر دے. یاد رکھو جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے. اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. اب کچھ غنیمت ہے، اس طرح سے تھوڑا اور کمی ہے، لیکن اب کچھ مت کرو ورنہ سارا معاملہ بیکار ہو جائے گا. یہ ساؤنڈ بکس اتر رکھا جائے گا کہ دکھین، اس کے لیے عقل چاہیے. بولو کس طرف رکھیں گے تو آواز اچھی نکلے گی، پیچھے رکھیں گے کہ آگے رکھیں گے. اب تھوڑا سا فرق آیا ہے، میری طرف دیکھیے، قرآن کا انداز بیان دیکھیے. قرآن کہتا ہے ایمان والو بچوں سے ہوشیار رہنا، بیویوں سے ہوشیار رہنا، اولاد سے ہوشیار رہنا، زمین جائیداد سے ہوشیار رہنا، سونے چاندی پیسوں سے ہوشیار رہنا. کہیں ایسا نہ ہو ان کی محبت تمہیں برباد کر ڈالے، ان کی محبت تمہیں اللہ رسول سے دور کر ڈالے، ان کی محبت تمہاری عاقبت کو خراب کر ڈالے. یاد رکھو جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے. بابو لوگ میری طرف دیکھیے، میری طرف دیکھیے. دنیا میں 2 طرح کے آدمی پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے. دنیا میں 2 طرح کے لوگ آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے. کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد مٹ گئے، نہ ان کی تاریخ باقی ہے، نہ ان کی نشانی باقی ہے، نہ ان کی کہانی باقی ہے. مر گئے، مٹی میں مل گئے، کیڑے مکوڑے کھا گئے، زمین کھا گئی، دنیا سے مٹ گیا. لیکن کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے کہ جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں، جیسے کل زندہ تھے اسی شان سے آج بھی زندہ ہے، جیسے کل زمانہ یاد کر رہا تھا آج بھی زمانہ انہیں یاد کر رہا ہے. میری طرف دیکھو، کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا. نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا. شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا. حامان کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا. بڑے بڑے راجا مہاراجا دنیا میں آئے، مٹی میں مل گئے، نام و نشان دنیا سے مٹ گیا. لیکن اللہ والوں کو دیکھو، بزرگوں کو دیکھو، سرکار غوث اعظم کو دیکھو، سرکار غریب نواز کو دیکھو، سرکار مخدوم بہاری کو دیکھو، سرکار مخدوم سمنانی کو دیکھو، گزرے ہوئے
बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। ऐ हमारे बच्चों, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का नाफरमान होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, ज़माने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मज़ारों में भी जिंदा रहता है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये बताओ कि मेरी बात समझ में आ रही है? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, इधर देखो। मरना तो सबको है, अरे जोर से बोलो, मरना तो सबको है, मगर ऐ हमारे बच्चों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेलकर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो। इधर देखिए, पैगंबर फरमाते हैं कि जब शराबी को मौत आती है, जुआरी को मौत आती है, जैसे लोग उसके जनाजा को कांधा पर उठाते हैं और कब्रिस्तान लेकर चलते हैं, तो वो चीख चीख कर बच्चों से कहता है, ऐना तज़हबून, कहां लिए जा रहे हो, कहां लिए जा रहे हो? ये मकान मेरा है, ये घर मेरा है, ऐ मेरे बच्चों मुझे मत दफन करो, मुझे कब्रिस्तान मत ले जाओ, मुझे यहीं रहने दो। ये कौन कहता है? जब शराबी को मौत आती है, जुआरी को मौत आती है, बेनमाजी को मौत आती है, लेकिन कसम खुदा, जब किसी नमाजी को मौत आती है, जब किसी मर्द मोमिन को मौत आती है, जब किसी आशिक रसूल को मौत आती है, तो वो तरफ तरफ कर कहते हैं, मुझे जल्दी दफनाओ, मुझे जल्दी कब्र में ले चलो। दिल तरफ रहा है, आंखें तरस रही है। मैंने सुना है कब्र में मुस्तफा की जियारत होने वाली है, कब्र में मुस्तफा का दीदार होने वाला। नारे तकबीर, अपने हाथों को उठाकर जवाब दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब नशर इलाहाबादी। इधर देखिए, शराबी को मौत, इधर देखिए, शराबी की मौत शराबी के लिए अजाब है। क्या है? जोर से बोलो, बोलो क्या है? अजाब है। जुआरी की मौत जुआरी के लिए अजाब है, चोरों की मौत चोरों के लिए अजाब है। इधर देखिए, बेनमाजी की मौत उसके लिए अजाब है, लेकिन कसम खुदा, जब किसी नेक बंदे को मौत आती है तो ये मौत उसके लिए ईद से बढ़कर खुशी है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की शब है उस गुल से मुलाकात की रात। ऐ हमारे बच्चों, जलसा कराना तो बहुत आसान है, तकरीरें बहुत है, मौजू भी बहुत है, मौजू की कोई कमी नहीं है, लेकिन याद रखिए, कौम के नब्ज को पहचानना, कौम की जरूरतों को पहचानना, ये सबके बस की बात नहीं है। आज मैं आप तक ऐसी ऐसी हदीसें पहुंचाऊंगा कि अगर आपने सुन लिया तो बदन के रोंगटे खड़े होंगे और अल्लाह का खौफ पैदा होगा। शर्त यह है, मेरी तकरीर को दिल से सुने। इजाजत है तो मैं आपको पहले वो हदीस सुनाऊं कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें, लज्जतें, मोहब्बतें क्या है, फिर उसके बाद वो हदीस कि हमारी बर्बादी का कारण क्या है, हमारी बर्बादी की वजह क्या है और उससे बचने का रास्ता क्या है। ये सारी हदीसें मैं आप तक पहुंचाऊंगा। पहले वो हदीस सुनिए कि दुनिया की मोहब्बतें, लज्जतें क्या है। इजाजत है तो हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अगर बाबू लोग हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह।
اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ. غور سے سنو ترمذی شریف جلد ثانی باب صفت الجنہ صفحہ نمبر 79 ان ابی ہریرہ قال قلنا یا رسول اللہ ما لنا اذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا وكنا من اهل الاخره فاذا خرجنا من عندك فانسنا قليلا وشببنا اولادنا انكرنا انفسنا. قال عليه السلام يا ابا هريره لو انكم تكونون اذا خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلك لزارتكم الملائكه في بيوتكم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ سرکار سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں خوب نماز پہ نماز پڑھتے ہیں آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں اللہ کا خوف رکھتے ہیں آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں قبر کو یاد رکھتے ہیں سے بچا کرتے ہیں مگر یا رسول اللہ جیسے گھر چلا جاتا ہوں بیوی کا چہرہ دیکھتا ہوں بچوں کا چہرہ دیکھتا ہوں رشتہ دار سے ملتا جلتا ہوں ہماری حالت بدل جاتی ہے. تو نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذلک لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم. سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ جس شان سے میرے پاس رہا کرتے ہو نماز پہ نماز پڑھتے ہو روزے پہ روزہ رکھتے ہو برائیوں سے بچا کرتے ہو جس شان سے میرے پاس رہتے ہو اگر اسی شان سے گھر پہ رہا کرو تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے. زور سے بولو سبحان اللہ. سیٹنگ ایسی الٹی پلٹی ہے آواز کی لذت ہی بیکار کر رہے ہیں. غلام ربانی کی آواز بے لذت ہو رہی ہے. بے لذت یہ بے لذت میری کچھ مچھلی اب رہنے دیجیے جو چیز اجازت ہے جلدی بولو اجازت ہے بالکل ادب سے بیٹھے. ہم لوگ ایک ذمہ دار آدمی ہم لوگوں کے سامنے آواز صاف ستھری ہو بولو بات سمجھ میں آ رہی ہے. بیٹھو کچھ نہیں سب ٹھیک جو چیز جیسے ہے ویسی رہنے دو. ابو ہریرہ نے کیا کہا جلدی بولو. ابو ہریرہ نے کہا سرکار آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں ہماری حالت کچھ اور رہتی ہے چلا جاتا ہوں گھر تو ہماری حالت بدل جاتی ہے. سرکار آپ کے پاس رہتا ہوں خوب نماز پڑھتا ہوں آپ کے پاس رہتا ہوں روزہ رکھتا ہوں آپ کے پاس رہتا ہوں اے اللہ کے رسول برائیوں سے بچا کرتا ہوں آپ کے پاس رہتا ہوں اے اللہ کے رسول غیبت چغل خوری سے بچا کرتا ہوں. لیکن جیسے گھر چلا جاتا ہوں بچوں کا چہرہ دیکھتا ہوں بیوی کا چہرہ دیکھتا ہوں ماں باپ کا چہرہ دیکھتا ہوں تو ہماری حالت بدل جاتی ہے. تو نبی نے کیا کہا پھر سے سنیے. نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ جس شان سے میرے پاس رہتے ہو نماز پہ نماز پڑھتے ہو روزے پہ روزہ رکھتے ہو برائیوں سے بچا کرتے ہو اللہ کا خوف رکھتے ہو جس شان سے میرے پاس رہتے ہو اگر اسی شان سے گھر پہ رہا کرو تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے. اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو بندہ جلسے میں بھی اللہ کا ذکر کرے جلسے میں بھی اللہ کو یاد کرے اور یہاں سے گھر جا کر بھی اللہ کو یاد کرے جیسے یہاں بیٹھا ہے برائیوں سے بچا ہے گھر جا کر بھی برائیوں سے بچتا رہے تو آسمان کے فرشتے ان کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں
ان کے چہرے کو دیکھا کرتے ہیں۔ اے مسلمان، وہ مسلمان کتنا خوش نصیب ہے جن کے چہرے کو آسمان کے فرشتے دیکھے۔ جب مسلمان کا بچہ شراب پینے نکلتا ہے تو اس کو دیکھنے شیطان آتا ہے۔ جب مسلمان کا بچہ جوا کھیلنے نکلتا ہے تو اس کو دیکھنے شیطان آتا ہے۔ جب مسلمان کا بچہ چوری ڈکیتی کرنے نکلتا ہے تو اس کو دیکھنے شیطان آتا ہے۔ لیکن جب مسلمان کا بچہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جب مسلمان کا بچہ نعت رسول پڑھتا ہے، جب مسلمان کا بچہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو دیکھنے آسمان کے فرشتے آتے ہیں۔ اے ہمارے بچوں، وہ کام مت کرو کہ تم کو شیطان دیکھے، وہ کام کرو کہ تم کو فرشتے دیکھے۔ ابھی تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی، اجازت دیجئے تو میں آپ کو دوسری حدیث سناتا ہوں۔ آج ہماری بربادی کا کارن کیا ہے؟ ہماری بربادی کی وجہ کیا ہے؟ آج فلسطین میں دیکھو تو مسلمان پریشان، ارے بولو عراق میں دیکھو مسلمان پریشان، بولو جہاں دیکھو وہی مسلمان پریشان۔ آخر پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ آج مسلمان برباد کیوں ہو رہا ہے؟ بربادی کا کارن کیا ہے؟ اجازت دیجئے تو میں آپ کو 3 حدیثیں لائن سے سناؤں گا، بالکل ادب سے سنیے، ادب سے بیٹھیے، اجازت ہے تو سناؤں۔ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، مشکات شریف جلد اول باب الکبائر صفحہ نمبر 17 کی حدیث سنو۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قیل وما ہن یا رسول اللہ فقال الشرک باللہ والسحر واکل الربا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَتَوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا 7 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی، جو تمہیں برباد کر دیں گی۔ 7 چیزوں سے ضرور بچا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا سرکار وہ 7 چیزیں کیا ہے؟ کیا پوچھا وہ 7 چیزیں کیا ہے؟ تو نبی نے سب کا نام لے لے کر شمار کیا۔ نبی نے ارشاد فرمایا الشرک باللہ والسحر الی آخر الحدیث۔ پیغمبر نے فرمایا پہلا نمبر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دوسرا نمبر کسی مسلمان کو برباد کرنے کے لیے جادو سیکھنا سکھانا، جادو کرنا کروانا، تیسرا نمبر اگر کوئی غریب مدد مانگے تو پیسہ دے کر اس سے سود کھانا، چوتھا نمبر غریب مسلمان کی زمین پر ان کے پیسے پر ناجائز قبضہ کرنا، ناجائز طریقے سے ان کا مال کھانا، پانچواں نمبر کسی کا ناحق خون بہانا، چھٹواں نمبر دین کی بات آ جائے تو پیٹھ دکھا کر بھاگنا، ساتواں نمبر پاک دامن مرد یا عورت پر جھوٹا الزام لگانا، جھوٹا الزام لگانا۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی، جو تمہیں برباد کر دیں گی۔ اس لیے 7 چیزوں سے توبہ کرو۔ بیٹھو چپ چاپ سے بیٹھو، اب ٹھیک ہے، جلدی بیٹھو، اب ٹھیک ہے۔ یہ سب پہلے سے کیا جاتا ہے، کیا کہوں جناب، بالکل اب ٹھیک ٹھاک ہے۔ آپ لوگوں کو آواز مل رہی ہے؟ بولو آپ لوگوں کو اب ٹھیک ہے بیٹا، ٹھیک ہے بیٹھو، تم لوگ پہلے سے یہ سب رکھا کرو۔ ادھر دیکھیے 7 چیزوں سے ضرور بچا کرو، شرک سے توبہ کرو، جادو سے توبہ کرو، رشوت خوری سے توبہ کرو، ناجائز مال کمانے سے توبہ کرو، اللہ کا خوف رکھو، نہ جانے کس وقت کس گھڑی ہماری موت آ جائے۔ ادھر دیکھیں نبی نے فرمایا کتنی چیزیں جلدی بولو، 7 چیزیں ایسی ہیں
जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी, तुम्हारी नस्लों को मिटा देंगी। सहाबा ने पूछा 7 चीजें क्या है? तो नबी ने फरमाया पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, दूसरा नंबर जादू करना करवाना सीखना सिखाना, तीसरा नंबर इधर देखिए किसी मुसलमान की मदद ना करना, अगर पैसा मांगे तो पैसा देकर सूद खाना, चौथा नंबर उनके नाजायज उनके पैसे को गुंडागर्दी से छीन लेना, उनकी जमीन पर कब्जा कर लेना, और पांचवा नंबर किसी का नाहक खून बहाना, छठवां नंबर दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना, और सातवां नंबर पाक दामन औरतों पर या मर्द पर बगैर किसी सबूत के झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी है जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी, जो तुम्हारे खानदान को मिटा देगी, जो तुम्हारे घरों को वीरान कर देगी। इसलिए अल्लाह का खौफ रखो और इन 7 चीजों से तौबा करो। अभी तो आपने 2 हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो मैं तीसरी सुनाता हूं, बड़ी शानदार, कलेजा दहल जाएगा। फिर उसके बाद चौथी हदीस, इजाजत है तो सुनिए। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबुल फितन सफ़ा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा क़ालत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहल बला क़ील व मा हिया या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु तुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा व तअर्रजुलु ज़ौजतहु व क़ा उम्महु व बर्र सदीक़हु व जफ़ा अबा वरतफ़ातिल अस्वातु फिल मसाजिद व कान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम व उक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि व शुरिबतिल क़ुबूर व लुबिसल हरीर व तुख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ व लअना आखिरु हाज़िहिल उम्मत अव्वला। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। इजाजत है, जब बोलो इजाजत है। ये बताइए कि मेरी आवाज साफ साफ पहुंच रही है? जब मुझे शक होता है तभी मैं पूछता हूं। इधर देखिए, मैंने जो आपको हदीस सुनाई, बड़ी शानदार हदीस सुनाई, मतलब सुनिए कलेजा हिल जाएगा। नबी ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। इधर देखिए और से सुनिए। बच्चे बैठो, जल्दी बैठो बेटा। बहुत शानदार हदीस मैंने आपको सुनाई, मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी। कितनी खराबियां? जोर से बोलो। नबी ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा, जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो। वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। नबी ने इरशाद फरमाया, मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग
बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताजीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, सेनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहे, लोग उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया, हाथ उठाकर गवाही दो। माशाअल्लाह, आप लोग सुन रहे हैं, इधर देखिए, हाथ नीचे कीजिए। नबी ने कितनी खराबियों का जिक्र किया, जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। 15। क्या कहा? जिस दिन 15 खराबियां मुसलमानों में पैदा हो जाएंगी, मुसलमान मुसीबत में घिर जाएगा, बलाओं में घिर जाएगा, करोड़पति रहेगा मगर परेशान रहेगा, 100 बीघा जमीन रहेगा मगर परेशान रहेगा, डेली मुर्गा खाएगा मगर परेशान रहेगा, एयर कंडीशन में सोएगा मगर परेशान रहेगा। जब तक कि अल्लाह से तौबा न कर ले, जब तक कि अल्लाह से माफी न मांग ले, जब तक कि अपने गुनाहों से तौबा न कर ले। आज हम मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो लोग कहते हैं ना फख्र के साथ, लेकिन इधर देखिए, आजकल लोगों ने मुसलमान उसको कहना शुरू कर दिया जिसका नाम अब्दुल्ला है, जिसका नाम अब्दुल सत्तार है, जिसका नाम मोहम्मद है, चाहे दिन भर में 100 बोतल शराब पीता हो, चाहे जुआ खेलता हो, चाहे ताश खेलता हो, अरे जोर से बोलो, चाहे एक वक्त की नमाज ना पढ़ता हो, बस नाम अब्दुल्ला है तो वो पक्का मुसलमान है, नाम अब्दुल सत्तार है तो पक्का मुसलमान है। चाहे चोरी करे, चाहे डकैती करे, चाहे खूरेजी करे, चाहे शराब पिए, इसका नाम मुसलमान नहीं है। इधर देखो, मुसलमान किसको कहते हैं? कहना और है और होना और है। मुसलमान किसको कहते हैं? जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो, जोर से बोलो, जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो, मुसलमान उसको कहते हैं। इधर देखिए, जिसका चेहरा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा शरीयत के मुताबिक हो, जिसकी दाढ़ी शरीयत के मुताबिक हो, जिसकी टोपी शरीयत के मुताबिक हो, जिसकी बीवी शरीयत के मुताबिक हो, जिसके बच्चे शरीयत के मुताबिक हो, मुसलमान उसको कहते हैं। जो शराब की भट्टियों से दूर रहता हो, मुसलमान उसको कहते हैं। जो 5 वक्त नमाज का पाबंद हो, मुसलमान उसको कहते हैं। जो अपने पड़ोसियों, जो अपने लिए पसंद करता हो, पड़ोसियों के लिए भी पसंद करता हो, मुसलमान उसको कहते हैं। कि नाम पूछने की जरूरत ना पड़े, आदमी गुफ्तगू सुनकर कह दे ये नबी का गुलाम है, कपड़ा देखकर कह दे नबी का गुलाम है, उसका कैरेक्टर देखकर कह दे नबी का गुलाम है। मुसलमान उसको कहते हैं। जिसका चाल चलन देखकर आदमी समझ जाए ये मुसलमान है। लेकिन आज हमारे बगल में आदमी बैठा होता है, लेकिन जब तक नाम नहीं पूछा जाता, पता नहीं चलता ये कौन है। अरे बोलो, एक छोकरे को मैंने देखा, गौर से सुनिए, ट्रेन में मैंने देखा एक छोकरा कान में बाली पहने हुआ था। क्या पहने हुआ था? जोर से बोलो। कान में बाली पहने हुए और हाथ में जंजीर पहने हुए, बड़ा खूबसूरत था। उसने मुझको देखा तो कहा अस्सलाम वालेकुम। मैं समझ गया ये मुसलमान का बच्चा, सलाम करने का मतलब मुसलमान का बच्चा है। बहरहाल मैंने जवाब तो दिया। मैंने पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कहता मेरा नाम मोहम्मद है। मैं सुनकर चौंक पड़ा। मैंने कहा बेटा तुम्हारा नाम कितना खूबसूरत है, लेकिन तुम लगते हो हिजड़े की औलाद हो। बताओ, मुसलमान का बच्चा कान में बाली नहीं पहनता, मुसलमान का बच्चा काफिरों की तरह हाथ में धागा नहीं बांधता, मुसलमान का बच्चा हाथ में कड़ा और जंजीर नहीं पहनता। जहां रहो
मुसलमान बनकर रहो। मुसलमान उसको कहते हैं जो नबी के रास्ते पर चला करे। मुसलमान उसको कहते हैं जो कुरान के रास्ते पर चला करे। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब को सूअर की तरह समझा करे, शराब से दूर रहा करे। जो शराब पीता है जरा सीने पर हाथ रखकर बताओ, शराब में कितनी बदबू है कि आदमी लेटरिन खाने में 1 घंटा रहना बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन शराबी के मुंह के सामने 5 मिनट आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सूअर के खून से भी ज्यादा बदबू शराब में है, पाखाने से भी ज्यादा बदबू शराब में है, पेशाब से भी ज्यादा बदबू शराब में है। और उसी शराब को एक मुसलमान अपने होठों से लगाए, बड़े शर्म की बात है, बड़े अफसोस की बात है। तौबा करो तौबा। इधर देखिए पैगंबर फरमाते हैं अगर शराबी की मौत उसी नशे के हालत में हो गई तो याद रखो उसको जहन्नम में जाने से कोई नहीं बचा सकता। मौत को याद रखो, अल्लाह का खौफ रखो। शराब इधर देखो कितनी बुरी चीज है जो तुम्हारे घरों को बर्बाद कर देगी, बच्चों को बर्बाद कर देगी। जिस पैसे से तुम शराब पी रहे हो उसी पैसे से तुम अनार का जूस पी लिया करो। अरे जोर से बोलो, सेब का जूस पी लिया करो। उसी पैसे से अपने बच्चे को अच्छी तालीम दिया करो, अच्छी तरबियत दिया करो। तुम्हारा बेटा पढ़ा लिखा रहेगा तो तुम्हारी कदर करेगा, तुम्हारा बेटा पढ़ा लिखा रहेगा तो तुम्हारी शान और अजमत को पहचानेगा। और अगर तुम शराब पीते रहे और बेटा जो है आवारापनी करता रहा तो वही बच्चा बुढ़ापे में तुम्हें जूता मारेगा, वही बच्चा तुम्हें घर से निकालेगा। अगर तुम चाहते हो कि बच्चा तुम्हारी कद्र करे, औलाद तुम्हारी कद्र करे, तो जायज पैसे से बच्चों को अच्छी तालीम दो, तरबियत दो, उन्हें खिला पिलाकर उनकी परवरिश करो, उनको जवान करो। कमा तदीनो तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अभी तो मैंने आपको 2 हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो मैं आपको चौथी हदीस सुनाता हूँ। 3 सुना चुका, इजाजत दीजिए तो चौथी सुनाता हूँ। बहुत शानदार हदीस। आप थोड़ा सा मुझे माफ कीजिएगा, थोड़ी सी कमी मुझे महसूस हो रही है, लेकिन इस महसूस को आप भी भूल जाना, मैं भी भूल रहा हूँ। इजाजत दीजिए तो सारा मजमा मैं आपको चौथी हदीस सुनाना चाहता हूँ। बाबू अब डिस्टर्ब मत कीजिए, सब ठीक है बाबू, सब ठीक है। उसको बैठाइए, उसको बैठाइए बाबू। पंखा नहीं बेटा, पंखा नहीं, आप बैठिए। पंखा मत लगाइए, आप बैठिए, सब ठीक है। पंखा मत लगाइए, इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। मैंने आपको 3 हदीस सुनाई, अब चौथी हदीस सुनाने जा रहा हूँ। इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है। लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, पहले हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। पसीना मुझको आ रहा, गर्मी मुझको लग रही है, आपको पंखे की हवा मुझको नहीं देना। आपको मालूम है पंखा मेरे लिए जहर है। और बोलो, आपको मालूम है जब बदन गर्म हो, ठीक है, जब बदन गर्म हो आप बैठिए चुपचाप से, जब बदन गर्म हो तो हवा नहीं देनी चाहिए, वरना नसों में जो तार है, अरे बोलो, बदन में जो नसें हैं, इधर देखिए, उसमें अगर 2 नसें टकरा गई तो याद रखो कुछ भी हो सकता है। आपको मालूम है माँ बाप, आप लोग जब धूप में गर्मी से आते हैं, बोलो धूप में जब आप जल मर के आते हैं, पसीने से आते हैं, आप गर्मी के मौसम में जब घर पहुंचते हैं तो आपके माँ बाप कहते हैं बेटा पहले ठंडा हो लो। क्या कहते हैं? बेटा पहले ठंडा हो लो फिर पानी पीना, क्योंकि गर्म बदन में पानी पीना ये बदन को नुकसान करेगा। तो तकरीर जब हो रही हो तो तेज हवा देना, ये बदन को नुकसान करेगा। तो जो चीज जहाँ है वहीं रहने दिया जाए। मैं आपको चौथी हदीस सुनाना चाहता हूँ, लेकिन ये ऐसी हदीस है, इधर देखिए कि इस हदीस से इजराइल, फिलिस्तीन और अरब वालों की हकीकत आपके सामने आएगी। अच्छा ये बताइए, इजराइल और फिलिस्तीन की जंग कितने दिन से चल रही है? जोर से बोलो। साल भर। अरे बोलो कितने दिन से चल रही है?
1 साल से इजराइल और फिलिस्तीन की जंग चल रही है। ये बताओ आज तक अरब वालों ने साथ दिया? अरे बोलो, अरब के मुसलमानों ने साथ दिया? अरे बोलो कितने? अच्छा ये बताइए अरब ममालिक कितने हैं? 57। अरे बोलो अरब ममालिक कितने हैं? 57। बोलो कितने हैं? 57 अरब ममालिक है। फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, गाजा बर्बाद हो गया, लेकिन सबने दीगर भपकी मारी, किसी ने फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया। अरे बोलो है कि नहीं? आखिर क्या वजह है कि फिलिस्तीन का साथ लोगों ने नहीं दिया और न दे रहे हैं? इधर देखिए। और फिलिस्तीन इजराइल की हकीकत क्या है, जो हदीस सुनाने जा रहा हूं, इस हदीस को सुन लेंगे तो सबकी हकीकत सामने आ जाएगी। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं? सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल ईमान बाबुल इत्तिसाम सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यअतियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराईल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनौ ज़ालिक व इन बनी इसराईल तफर्रकत अला सनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूलल्लाह फ़क़ाल आना अलैहि व असहाबी। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। उधर देखिए, बहुत शानदार हदीस सुनाई कसम खुदा। इस हदीस का मतलब सुनिए, कलेजा दहल जाएगा। मेरे नबी ने 1400 बरस पहले सब कुछ आपको बता दिया है। और बात है कि हमारे उलमा आपको बताते हैं, आप गाना तो याद रखते हैं मगर हदीस भूल जाते हैं। याद रखते हैं मगर हदीस भूल जाते हैं। इधर देखिए, ये हदीस अभी जो मैंने आपको सुनाई, एक टुकड़ा तो सबने सुना है। अरे बोलो, इसी हदीस का आधा हिस्सा सबने सुना है और सबको मालूम है, वहाबी देवबंदी सबको मालूम है, लेकिन पूरी हदीस किसी ने पढ़ी नहीं। क्योंकि अगर पूरी हदीस पढ़ देते तो मुसलमान में फिरका नहीं होता, सब एक सुन्नी बनकर रहते। इधर देखिए, अगर पूरी हदीस पढ़ देते तो दूध का दूध पानी का पानी, बिल्कुल मामला क्लियर रहता। आज मुसलमान टुकड़ों में जो बट गए हैं, ये मुसलमान टुकड़ों में बटे नहीं होते। अभी जो मैंने हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में, जिस दिन मेरी उम्मत में, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो ज़माना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो ज़माना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा यहूदी और नसरानी पर आया, वो ज़माना मेरी उम्मत पर जरूर आएगा। जो हाल बनी इसराइल का हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो काम बनी इसराइल ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो तरीका उनका था वही तरीका मेरी उम्मत का हो जाएगा। अगर उन लोगों ने अपने माँ के साथ बदफेली की होगी, अगर उन लोगों ने अपने माँ के साथ बदफेली की होगी, तो मेरी उम्मत में भी कुछ कमीने होंगे जो माँ के साथ बदफेली करेंगे, उसी बनी इसराइल की नकल करेंगे, उसी बनी इसराइल की एक्टिंग करेंगे। अब आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए,
वो लोग 72 फिरकों में बट गए। मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से, उनसे रिश्ता रखने की वजह से, उनसे ताल्लुक रखने की वजह से, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग 73 में बढ़ जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इस्राइल के 72 फिरकों से इनका रिश्ता होगा, इनका ताल्लुक होगा, इनका कनेक्शन होगा। नाम तो मुसलमान रखेंगे मगर अंदर से यहूदी होंगे, अंदर से नसरानी होंगे, अंदर से बनी इस्राइल से होंगे। एक फिरका जन्नती। सहाबा ने पूछा सरकार वो कौन सा फिरका है? तो नबी ने इरशाद फरमाया वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख ज़माना रंग बदले, लेकिन एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। लगता है आप लोग सही से नहीं समझे। हाथ उठाकर बोलो नहीं, हाथ नीचे कीजिए। अब हाथ नीचे कीजिए। मजमा बड़ा अच्छा है। हमारी माँ बहन भी अदब से बैठी हैं। बच्चे को बैठाइए। ये लड़का कौन है? ये लड़का कौन है? बैठो। अब वो भी औरतों के बीच में लड़का नहीं होना चाहिए। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। इधर देखिए, मैंने जो आपको हदीस सुनाई, फिर से इसका मतलब आप सुनिए, ध्यान से सुनिए। इधर देखिए, नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। किस पर आया? अरे बोलो, अरे जोर से बोलो। जैसा बनी इसराइल कौन है? ये यहूदी और ये बोलो क्रिश्चियन, नसरानी, ये सब क्या है? जल्दी बोलो, बनी इसराइल से है। किससे है? जल्दी बोलो। नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अगर उन लोगों ने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत भी उनसे दोस्ती की वजह से वही हरकत अपने मां के साथ करेंगे। नबी फरमाते हैं वो लोग 72 फिरकों में बट गए। मुसलमान दोस्ती की वजह से 73 में बटेंगे। एक जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो होगा अब्दुल्ला, नाम तो होगा मोहम्मद, नाम तो होगा अब्दुल सत्तार, नाम तो होगा सलमान, लेकिन अंदर से सब यहूदी होंगे। इसीलिए 72 जहन्नमी और एक जन्नती। जन्नती वो होगा जो हमेशा मेरे रास्ते पर कायम रहेगा। अच्छा ये बताइए, इस हदीस को आप सुन चुके, क्या वजह? इधर देखिए, आपको मालूम है, आप समझते फिलिस्तीन में मुसलमान मारा जा रहा है। याद रखिए, सिर्फ मुसलमान नहीं, उनकी नस्लें बोलो मखलूत हो चुकी है। अरे बोलो, पूरे अरब का नजारा कीजिए, पूरे अरब का। आज से 50 साल पीछे चलिए तो अरब का माहौल अलग था। आज पूरे अरब का माहौल क्या है आपको मालूम है? उनके घरों में अगर 4 बीवी है तो 1 मुस्लिम है, 3 यहूदिया। तो बोलो, अगर उनके पास कै बीवी है? जल्दी बोलो। पूरे अरब के अंदर चले जाइए, याद रखिए, अगर उनके पास 4 बीवी है तो ज्यादातर घर में चले जाइए, आप देखेंगे उनकी 3 बीवी यहूदिया मिलेंगी और 1 मुसलमान की बेटी मिलेगी। अब सीने पर हाथ रखकर बताओ, बीवी अगर यहूदी होगी, बीवी क्रिश्चियन होगी, तो उसके पेट से जो बच्चा पैदा होगा, अरे बोलो, वो क्रिश्चियन यहूदिया उसकी माँ होगी कि नहीं? अरे जोर से बोलो, उस बच्चे की माँ होगी कि नहीं? तो मेरी तरफ देखो, आज फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, तबाह हो गया।
अरब वाले घींगर भपकी मारते रहे, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। साथ दे तो किसका दे? किसी का नाना यहूदी है, किसी का दादा यहूदी है, किसी की नानी यहूदी है, किसी की दादी यहूदी है, एक का दूसरे से रिश्ता हो चुका है, तो आखिर साथ दे तो किसका साथ दे? जंग करे तो किससे जंग करे? इसलिए आप धोखे में है। पूरा अरब बदल चुका है, पूरा फिलिस्तीन बदल चुका है, सारा सिस्टम बदल चुका है। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इस्राइल पर आया। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जैसे वो खाते थे मुसलमान भी खाना शुरू करेंगे, जैसे वो कपड़ा पहनते थे मुसलमान भी कपड़ा पहनेंगे, जैसे वो नंगा नाच नाचते थे वैसे ही मुसलमान भी नंगा नाच नाचेंगे, जैसे वो बेहयाई करते थे मुसलमान भी बेहयाई करेंगे, जैसे वो माँ बेटी के साथ खुल्लम खुल्ला सिना कार्य करते थे मुसलमान भी इसी की नकल करेंगे। एक जमाना आएगा, वो दौर आ चुका है। इसलिए याद रखिए, आज पूरा फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, किसी ने साथ नहीं दिया। साथ इसलिए नहीं दिया कि किसी की नानी यहूदी, किसी की दादी यहूदी, किसी का नाना यहूदी, किसी का दादा यहूदी, तो जंग करे तो किससे करे? साथ दे तो किसका साथ दे? इसलिए मुसलमान तबाही इसीलिए हमारे सामने है। आपका कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया बाद व मन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमस ज़ालिमीन। ऐ मुसलमान, यहूदी और नसरानी से रिश्ता मत करना। वो आपस में दोस्त है मगर तुम्हारे दुश्मन है। जो उससे दोस्ती करेगा वो भी उन्हीं में से है। पहले मुसलमान एक प्लेटफार्म पर थे, आज से 100 बरस पीछे चलिए, आज से 200 बरस पीछे चलिए, आज से 500 बरस पीछे चलिए, सारे मुसलमान एक प्लेटफार्म पर थे। आज जो मुसलमान टुकड़ों में बटे हैं ये सब यहूदियों की देन है। आज जो मुसलमान फिरकों में बटे हैं सबके पीछे यहूदी का हाथ है। आज मेरे नबी के खिलाफ जहां जहां गुस्ताखियां की गई है सबके पीछे यहूदी का हाथ है। याद रखिए, यहूदियों ने मेरे पैगंबर की गुस्ताखियां करवाई, यहूदियों ने कभी हमारे कुरान पर हमला करवाया, यहूदियों ने कभी हमारे नबी की शान और अजमत पर हमला करवाया। तो आज जो कुछ भी तुम दुनिया में देख रहे हो ये सब यहूदी करवा रहे हैं। ये और बात है कि करने वाला, अरे बोलो, करने वाला कोई रैहान है और कोई शैतान है। अरे जोर से बोलो, करने वाला कोई, अरे बोलो, फालतू है और करने वाला कोई फालतू है। इसलिए याद रखिए, अपने आप को बचाइए, जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, नबी के रास्ते पर चलिए। कुरान आपका कहता है वकज़ालिका नुवल्ली बादज़ ज़ालिमीन बादम बिमा कानू यक्सबून। ऐ मुसलमान, जब तुम शराब पीने लगोगे, जुआ खेलने लगोगे, यहूदी के रास्ते पर चलोगे, जब क्रिश्चियन के रास्ते पर चलोगे, जब तुम बिगड़ जाओगे तो हम तुम पर जालिम को मुसल्लत करेंगे, हम तुम पर जालिम को मुसल्लत करेंगे। जालिम का मुसल्लत करना ये अज़ाब इलाही है। आप क्या समझते हैं सिर्फ ज़लज़ला अज़ाब इलाही है, सिर्फ तूफान अज़ाब इलाही है? ऐसा नहीं, आसमान से लेकर जमीन तक हर चीज अल्लाह की फौजें है। अल्लाह जब किसी को अज़ाब देना चाहता है तो वो चीज उस पर मुसल्लत कर देता है। जोर से बोलो, अल्लाह जब किसी को अज़ाब देना चाहता है तो ज़लज़ला पैदा करता है। अल्लाह जब किसी को अज़ाब देना चाहता है तो बलाओं वबाओं को भेज देता है। अल्लाह जब किसी को अज़ाब देना चाहता है तो जोर से बोलो, बाढ़ को भेज देता है। अल्लाह जब किसी को अज़ाब देना चाहता है तो जोर से बोलो, आप पर किसी जालिम को मुसल्लत कर देता है। इसलिए शराब से तौबा करो, जुआ से तौबा करो, बेहयाई से तौबा करो। एक बात और सुनते चलो, इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? लगता है आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, हाथ नीचे करो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, जोर से सुनिए, ध्यान से सुनिए।
इधर देखिए, शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। क्या है जल्दी बोलो? शराब तमाम बुराइयों की, अरे जोर से बोलो, तमाम बुराइयों की क्या है? बोलो, शराब तमाम बुराइयों की, और बेहयाई भी तमाम बुराइयों की जड़ है। मर्दों को शराब से बचाओ और औरतों को बेहयाई से बचाओ। ये दोनों बुराइयों की जड़ है। देखो, मर्दों को शराब से बचाओ और औरतों को किससे बचाओ? बेहयाई से बचाओ। औरत को हमेशा बाहया बना के रखो। बेटी तुम्हारी बाहया रहे, बीवी तुम्हारी बाहया रहे, तुम्हारी माँ बहने बाहया रहे, बाहया रहेंगी तो घर की इज्जत महफूज रहेंगी। बुराइयां घर में उसी वक्त जन्म लेती है जब औरतें बेहया होती है। इसलिए बुराइयों की जड़ औरतों में बेहयाई और मर्दों में शराब नोशी है। ये दोनों खतरनाक चीज है। इससे तौबा करो, बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलो और जहां रहो मुसलमान बनकर रहो। जोर से बोलो, जहां रहो मुसलमान बनकर रहो। अपने मजहब को बदनाम मत करो। सिर्फ लाठी लेकर मैदान में निकलना और नारा लगाना, नारे तकबीर, इससे काम नहीं चलेगा। ईमान मजबूत रखो। अच्छा, ईमान किसको कहते हैं आपको पता है? आजकल लोग समझते हैं बस कलमा पढ़ लिया तो मोमिन हो गए। याद रखिए, सिर्फ कलमा पढ़ने से मोमिन नहीं हो सकते। कलमा पढ़ने के साथ साथ तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता यकीन रखना होगा, ईमान रखना होगा, तब मोमिन बनोगे। अगर कोई कलमा पढ़ लिया और नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कलमा पढ़ लिया रोजा की तौहीन कर रहा है, कलमा पढ़ लिया नमाज की तौहीन कर रहा है, तो वो मुसलमान का बच्चा नहीं हो सकता, यहूदी की औलाद है। याद रखिए, मुसलमान का बच्चा मोमिन उसको कहते हैं जो अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे और तमाम जरूरियात दीन पर मुकम्मल ईमान रखे। ना कौवे काय काय करे, अपना ईमान बोलो, जोर से बोलो, अपना ईमान डगमगाए नहीं, हमेशा मजबूती से कायम रहे। आज देख रहे हैं कितनी खतरनाक हवा चल रही है। अरे बोलो, कितनी खतरनाक हवा चल रही है। मेरे पैगंबर के खिलाफ तरह तरह की बातें की जा रही है। हजरात याद रखिए, मेरे पैगंबर की शान और अजमत को कोई बेईमान नहीं पहचान सकता, कोई शैतान नहीं पहचान सकता। जब मेरे नबी मक्के में आए उस वक्त भी भूखने वाले भूखते रहे और आज भी भूखने वाले भूखते हैं। कल भी कुछ लोग पालतू थे और कुछ लोग फालतू थे, आज भी कुछ लोग फालतू हैं और कुछ लोग फालतू हैं। भूखने वाले भूख रहे हैं, आप उनको पागल समझ लो। नबी के खिलाफ भूखना उसके पागल होने की दलील है। अगर कोई सूरज के खिलाफ बोले तो सूरज का कुछ नहीं बिगड़ेगा, भूखने वाले का कसूर है। जो खिलाफ बोल रहा है उसका कसूर है। मेरे मुस्तफा के खिलाफ लाख दुनिया भूखती रहे, उन पर कोई फर्क नहीं है। मुस्तफा की रिसालत का सूरज और चमकता चला जाएगा, मुस्तफा की रिसालत का सूरज और रोशन होता चला जाएगा। रब ने फरमा दिया, मुस्तफा कौवे काय काय करते रहे लेकिन आपकी हर घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर रहेगी। ये है नबी की शान। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वला हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब नशरत इलाहाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बताइए, मेरी तकरीर इधर देखिए, मैंने अभी तक जो आपको हदीसें सुनाई समझ में आई? माशाअल्लाह। इधर देखिए, सालमारी के मुसलमान बड़े अच्छे लोग हैं। बाबू चलो अब बैठो, सब ठीक ठाक है, बैठो। अब बच्चा है क्या कुछ बोले? अरे बोलो, इजाजत है। अच्छा ये बताइए, अब तक जितनी हदीसें सुनाई आपको समझ में आई? अरे बोलो, समझ में आई? अब आगे चलिए, वलियों का मर्तबा क्या? अरे जोर से बोलो, वलियों का मर्तबा क्या है? अगर इस हदीस को सुनना चाहते हैं तो अब आप थोड़ा सा
10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट और बर्दाश्त कर ले। अरे बोलो बर्दाश्त कर ले, ताकि यहाँ से जाए तो कुछ लेकर जाए, यहाँ से जाए तो कुछ लेकर जाए। इजाजत है? जाओ। मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, ये करा, ये सब गलत बात। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है? इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा गुलाम गौस सिलसिला मरकजी, नारे तकबीर। तशरीफ रखिए। शहजादा आप देख रहे हैं हजरत अल्लामा इब्राहिम अलैहिर्रहमा कटिहार शरीफ, आपके कटिहार, उन्हीं हजरत अल्लामा मौलाना इब्राहिम साहब क़िबला अलैहिर्रहमा के शहजादे हैं और हुजूर मुफ्ती गुलाम रसूल साहब अलैहिर्रहमा के, बोलो, शेरे कटिहार शेरे बिहार हजरत अल्लामा मौलाना अशाह मुफ्ती गुलाम रसूल साहब क़िबला अलैहिर्रहमा के नवासे भी हैं, नाती भी हैं। उनकी तकरीर आपको सुननी है। बिल्कुल अदब से बैठे। इजाजत दीजिए तो मैं जल्दी से एक हदीस सुना देता हूँ। वलियों की शान क्या है? अरे बोलो वलियों की शान क्या है? इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबो जिक्रिल्लाह ताला सफा नंबर 197 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु ताला मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब व मा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा तरस्तु अलैहि व मा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु फैज़ा अहबब्तुहु फकुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसुरु बिही व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व इन सअलनी लौ ऊतियन्नहु व लइन इस्तआज़नी लउइज़न्नहु। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस मेरे सुनाई, मतलब होंगे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, जो मेरे वलियों से बगावत रखे, जो मेरे वलियों की शान में गुस्ताखी करे, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूँ। नबी फरमाते हैं ताला का इरशाद है, जिसको मैं वली बना लेता हूँ, जिसको मैं अपना दोस्त बना लेता हूँ, उनकी शान ये होती है, उनका मर्तबा ये होता है, मैं उनकी आंखें हो जाता हूँ जिससे वो देखते हैं, मैं उनके कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनते हैं, मैं उनके पाँव हो जाता हूँ जिससे वो चलते हैं, मैं उनके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ते हैं। मैं जिसको वली बना लेता हूँ, अगर वो मुझसे कुछ मांगता है तो मैं जरूर दिया करता हूँ, अगर वो मेरी पनाह चाहता है तो मैं अपनी पनाह में ले लेता हूँ। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, जो जिसको मैं वली बना लेता हूँ उसकी शान ये होती है कि मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, मैं उसके पांव बन जाता हूँ। सवाल ये पैदा हुआ, अल्लाह तो इन सब चीजों से पाक है, तो क्या मतलब है? मतलब इस हदीस का ये है, इधर देखिए, मतलब ये है कि जो मेरा वली बन जाता है वो इस तरह मेरी मोहब्बत में फना हो जाता है कि हर काम मेरी मोहब्बत में करता है, सुनता है तो मेरी मोहब्बत में, बोलता है तो मेरी मोहब्बत में, देखता है तो मेरी मोहब्बत में, किसी को कुछ देता है तो मेरी मोहब्बत में, चलता है तो मेरी मोहब्बत में। जिसको मैं वली बना लेता हूँ वो अपना हर काम मेरी रजा के लिए करता है, मेरी मोहब्बत में करता है,
یہ ہے ولیوں کی شان. آج کل لوگ سمجھتے ہیں جو پیر بن گیا وہ ولی بن گیا. ارے بولو پیر بن گیا جو ولی بن گیا. یاد رکھیے پیر ہونا الگ ہے. ہر ولی پیر ہے. اور سے بولو ہر ولی آپ کا پیر ہے, چاہے آپ ہاتھ دیے ہوں یا نہ دیے ہو. ارے بولو ان سے مرید ہوئے ہو یا نہ ہوئے ہو, اللہ کے جتنے ولی ہیں, دنیا میں جتنے علماء دین ہیں, سب آپ کے پیر ہیں. غور سے بولو سب آپ کے پیر ہیں اور سب کے اہم مرید ہیں, چاہے ہاتھ دے یا نہ دے. علماء بھی آپ کے بولو پیر ہیں, اولیاء بھی آپ کے پیر ہیں. یاد رکھے اس لیے ولی کو پہچانیے. لوگ سمجھتے ہیں جو میرا پیر بن گیا وہ ولی بن گیا, چاہے ایک وقت کی نماز نہ پڑھے. تمہارا پیر تمہاری نظر میں ولی ہو سکتا ہے مگر شریعت کی نظر میں ولی ہے یا نہیں, یہ شریعت سے پوچھو تبھی پتا چلے گا. اگر کسی کو پہچاننا ہو تو ایسے مت پہچانو, ایک آنکھ میں قرآن کا چشمہ لگاؤ اور دوسری آنکھ میں حدیث کا چشمہ لگاؤ. ان دونوں چشمے سے اس کا چہرہ دیکھو, اس کا کپڑا دیکھو, اس کا حال دیکھو. اگر چشمے کے مطابق ہے تو سمجھ لو وہ اپنے وقت کا ولی ہے, اور اگر چشمے کے خلاف ہے تو سمجھ لو وہ شیطان تو ہو سکتا ہے مگر ولی نہیں ہو سکتا. ولی کو ادھر دیکھیں, حضرت سیدنا بایزید بستامی کہتے ہیں اللہ کو پہچاننا آسان ہے مگر ولی کو پہچاننا مشکل کام ہے. ارے بولو کیا کہا؟ اللہ کو پہچاننا آسان. ارے بولو اللہ کو پہچاننا آسان کیسے ہے؟ آسمان کو دیکھا آپ نے اللہ کو پہچان لیا, چاند ستارے کو دیکھا اللہ کو پہچان لیا, پیڑ پودوں کو دیکھا اللہ کو پہچان لیا, دریا سمندر کو دیکھا اللہ کو پہچان لیا, ساری دنیا کو دیکھا اللہ کو پہچان لیا کہ اس کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ کو پہچاننا آسان مگر ولی کو پہچاننا بڑا مشکل کام ہے. آپ کے بغل میں بیٹھا ہے, باتیں کر رہا ہے, آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے, لیکن آپ پہچان نہیں رہے ہیں کہ یہ ولی ہے. ولیوں کی پہچان کیا؟ ادھر دیکھو, ولیوں کی پہچان یہ ہے کہ جن کا چہرہ دیکھ کر اللہ کی یاد آئے اور جن کی زندگی دیکھ کر مصطفیٰ کی یاد آئے تو سمجھ لو وہ ولی ہے. اور سے بولو جن کا چہرہ دیکھ کر اللہ کی یاد آئے اور جن کی زندگی دیکھ کر بولو نبی کی یاد آئے, بولو وہ ولی ہے. ارے بولو زور سے بولو وہ ولی ہے. اچھا ایک بات سنیے, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. مجنون کا نام سنا ہے؟ لیلا مجنون کا نام سنا ہے؟ زور سے بولو. ارے بولو مجنون کا نام سنا ہے؟ ہنسیے مت, ہنسیے نہیں. ادھر دیکھیے آپ لوگوں کو غلط طریقے سے معلوم ہوا. ادھر دیکھیے حضرت مجنون, ادھر دیکھیے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ادھر دیکھیے حضرت مجنون رحمت اللہ تعالی علیہ, اور سے بولو بزرگ گزرے ہیں. ادھر دیکھیے دنیا سمجھتی تھی کہ لیلا سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ لیلا سے محبت نہیں کرتے تھے. بولو لیلا کی محبت ایک پردہ تھی, پردہ, ورنہ وہ حقیقت میں اللہ کے دیوانے تھے. بولو رسول کے دیوانے تھے, رسول کے چاہنے والے تھے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں, اعلیٰ حضرت کی کتاب فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 پیج نمبر 210 پر جنید بغدادی کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا, قال جنید بغدادی ان المجنون بنی عامر کان من احباء اللہ تعالی ستر شانہ بجنونہ بلیلا. حضرت ادھر دیکھیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جنید بغدادی فرماتے ہیں حضرت مجنون اللہ کے محبوب ہے, حضرت مجنون اللہ کے ولی ہے. لیلا کی محبت تو ایک پردہ تھی, حقیقت میں وہ اللہ سے محبت کرتے تھے, رسول سے محبت کرتے تھے. تو ولیوں کی پہچان یہ ہے جن کا چہرہ دیکھ کر بولو اللہ کی یاد آئے اور جن کی زندگی دیکھ کر نبی کی یاد آئے تو سمجھ لو وہ ولی ہے. لیکن ادھر دیکھیے ایک بات اور سنتے چلیے, آج کل لوگ
आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको अपना दीवाना तो बना देते हैं लेकिन नबी का दीवाना नहीं बनाते। अरे जोर से बोलो, अपना दीवाना तो बना दिया लेकिन नबी का दीवाना नहीं बनाया। तो याद रखिए, जिसने आपको अपना दीवाना बनाया और नबी का दीवाना नहीं बनाया तो समझ लो आप धोखे में है, आप खतरे में है। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए। सरकार गौसे आजम की जिंदगी देखिए, सरकार गौसे आजम की शान देखिए। आज सारी दुनिया गौसे आजम का तस्करा करती है, सारी दुनिया गौसे आजम का बोलो खुतबा पढ़ती है। हम खुतबा पढ़े तो क्या ताज्जुब है, गौसे आजम का खुतबा जिन्नात भी पढ़ते हैं, इंसान भी पढ़ते हैं, शरीर परिंद भी पढ़ते हैं। गौसे आजम का वो मर्तबा है, इधर देखिए कि आप उनका मर्तबा नहीं पहचान सकते। एक जुमले में मैं कह दूं, इधर देखिए, जैसे मेरा रसूल पैदा होने से पहले नबी बना दिया गया, ऐसे ही उनका बेटा अब्दुल कादिर पैदा होने से पहले वली बना दिया गया। अभी पैदा नहीं हुए वली बन गए, अभी दुनिया में नहीं आए वली बन गए, अभी माँ के पेट में है वली बन गए। गौसे आजम मादरजाद वली, बोलो पैदाइशी वली है। ये अल्लाह की अता है, अल्लाह का फजल है। आपको मालूम है सरकार गौसे आजम तमाम वलियों के सरदार है। अरे बोलो, सरकार गौसे आजम तमाम वलियों के सरदार है। इसका मतलब समझिए, कहीं ऐसा न हो आप सिद्दीक़ अकबर के सरदार मान ले, उमर का सरदार मान ले, और लोगों का सरदार मान ले। आप इसको गौर से सुनिए। इधर देखिए, ऐसे तो हर दौर में गौस रहे हैं और हर जमाने में कयामत तक गौस रहेंगे। गौस से कोई जमाना खाली नहीं। इधर देखिए, मेरे सरकार की उम्मत में गौसियत कुबरा के मनसब पर सबसे पहले जो फायज हुए उनका नाम सिद्दीक़ अकबर है। जो इस मनसब पर उम्मत में जो सबसे पहले फायज हुए उनका नाम सिद्दीक़ अकबर है। उसके बाद ये मनसब हजरत फारूक आजम को मिला, उसके बाद उस्मान गनी को मिला, उसके बाद अली को मिला, उसके बाद इमाम हसन को मिला, उसके बाद सिलसिला बसिलसिला इमाम हसन अस्करी का। इधर देखिए, सबके सब इधर देखिए गौसियत कुबरा के मनसब पर फायज रहे। लेकिन इमाम हसन अस्करी के बाद से लेकर गौसे आजम तक और गौसे आजम से लेकर के इमाम मेहदी के दुनिया में आने तक जितने वली पैदा होंगे सबके सरदार गौसे आजम होंगे। इमाम हसन अस्करी के बाद से लेकर, जल्दी बोलो, अस्करी के बाद से लेकर इमाम मेहदी के दुनिया में आने तक, चाहे गौसे आजम की जिंदगी में हो चाहे पर्दा करने के बाद हो, जितने वली होंगे सबके सरदार गौसे आजम होंगे। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। जलसा खत्म नहीं हुआ, मेरी तकरीर खत्म हो गई, फिर कभी आऊंगा तो जो चीज बच गई है इंशाअल्लाह फिर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं थक गया, अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना कबूल फरमाए। वाक़ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।